So guys, आज हम डिस्कशन करेंगे मई जून 2020 वेरिएंस 22. Gallium is an element in group 13. A sample of gallium is analyzed using a mass spectrometer. The mass spectrum produced is shown. ये है जनाब मास और ये इसकी है परसेंटेज अबंडेंस. ये आपका सेकंड आइसोटोप है और ये उस सेकंड आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस. वो कहना है explain what is mean by the term relative atomic mass. Relative atomic mass is very easy definition. आप O level से करते हुए आ रहे हैं. हम कहेंगे average mass of an atom compared to one over 12 the mass of an atom of carbon 12 isotope. Calculate the relative atomic mass of gallium in this sample. Give your answer to 4 significant figures. Show your working. So बेटा आपके पास 69 into 60 होगा. $60.11 plus 71 into 39.89 divided by total abundance. I believe it's going to be 100. तो आपके पास relative atomic mass आ जाएगा 69.80. Next is complete the table which describes a gaseous atom of gallium. ये gallium है आपके पास. Nucleon number आपसे वो पूछ रहे हैं. Total number of electrons in the lowest energy level. Types of orbital which contain the electrons in the highest energy level. Gallium जो है वो group 13 का element है. अगर group 13 का element है तो इसका mass यानी nucleon number आपको नजर आ रहा है which is 71. ये लिखा हुआ nucleon number. Total number of electrons in the lowest energy is 2. यानी 1s पे 2 होंगे. And types of orbital which contain the electrons in the highest energy level वो obviously होगा बेटा p. ठीक है. यानी अगर ग्रुप 13 का एलिमेंट है आप जानते हैं तो जाहिर सी बात है वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, s ऑर्बिटल में 2 होंगे, p में 1 होंगे. तो जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल के अंदर ऑर्बिटल होगा वो p ऑर्बिटल होगा. दैट्स हाउ आई हैव डिड्यूस्ड दिस. ठीक है. When gallium is heated in excess chlorine, gallium trichloride is made. Draw the shape of gallium trichloride molecule and suggest GaCl bond angle shape of the molecule. अच्छा जी, गैलियम exactly AlCl3 जैसे होता है वैसे GaCl3 बनेगा यानी ट्राइगोनल प्लेनर. और इसका बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली 120 डिग्री होगा. Gallium oxide and aluminum oxide react in the same way with HCl and with NaOH. Suggest the equation for the reaction between gallium oxide and HCl. तो गैलियम ऑक्साइड और HCl की तो इक्वेशन एग्जैक्टली एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसी ही होगी. Ga2O3 plus 6HCl एरो 2 गैलियम क्लोराइड plus 3H2O. फिर उसके बाद वो कह रहे हैं सजेस्ट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन गैलियम ऑक्साइड एंड NaOH. तो अगेन गैलियम ऑक्साइड है Ga2O3 प्लस
2NaOH plus 3H2O arrow 2NaGaOH taken 3. ठीक है. Question number 2. Nitric acid can be made in a 3-stage process. Ammonia is oxidized by oxygen from the air to form nitrogen monoxide and water. This reaction is carried out at 10 to 13 atmosphere pressure and 900 degrees Celsius in the presence of a platinum catalyst. Nitrogen monoxide reacts with more oxygen to form nitrogen dioxide. Delta H की value negative है. Nitrogen dioxide reacts with water to make nitric acid and nitrogen monoxide. ये equation आ गई. Write an equation to show the reaction occurring in stage 1. स्टेज 1 में अमोनिया जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में और वाटर में. ठीक है. ऑब्वियसली आपने यहां पर 4 लेना है, तो यहां पर भी 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा. ये होगी आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इसके बाद वो आपसे कह रहे हैं ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. अमोनिया ग्रुप 15 का एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 3 4 5. हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से शो करेंगे. In the boxes gives the oxidation number of nitrogen in the nitrogen containing the species for the reaction in stage 3. NO2 में nitrogen is +4, HNO3 में nitrogen is +5, NO में nitrogen is +2. ये सारी डिटरमिन करके दी है हमने आपको लेक्चर में. Explain why the reaction in stage 3 is described as disproportionation reaction. Include reference to transfer of electron in your answer. तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, आप जानते हैं. डिसप्रोपोर्शनेशन इसलिए बिकॉज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू नाइट्रिक एसिड, और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिड्यूस भी हो रहा है इनटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. ठीक है. तो आप यहां पर कह सकते हैं NO2 loses electron, so it will oxidize into nitric acid. While NO2 gain electron so it will reduced to NO. Hence, nitrogen exists in different oxidation state in a same reaction. The release of nitrogen monoxide into atmosphere causes atmospheric pollution. State and explain the effect of nitrogen monoxide gas in contact with moist air. आप जानते हैं जब moist air के साथ नाइट्रोजन गैस कांटेक्ट में आता है तो जाहिर सी बात है नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है. तो आप लिखेंगे इट कॉजेस
acid rain. Also, NO when reacts with moisture, it causes photochemical smog as well. The nitric acid made in stage 3 can then be reacted with ammonia to form ammonium nitrate. Calculate the volume of nitrogen dioxide measured at room temperature and pressure required to make 40 tons of ammonium nitrate. 1 ton equals to 1000 kilograms. Show your working. Okay. तो सबसे पहला है मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट. 40 tons तो आप डिवाइड कर दीजिए 80 से. 80 is the MR of NO. So 40 divided by 80 is going to be 0.5 mole. आप जानते हैं अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड का रेशियो सेम है इन द सेकंड इक्वेशन 1:1. तो अगर ये 0.5 मोल है तो ये भी 0.5 मोल हो जाएंगे आपके पास. Okay, in the second equation, NO2 और नाइट्रिक एसिड में 3:2 का रेशियो है. अगर आपने इसके 0.5 मोल्स कैलकुलेट किए तो बताइए मोल्स ऑफ NO2 कितने हो जाएंगे. तो 0.5 into 3 divided by 2 तो ये हो जाएगा 0.75. अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो 1 मोल इक्वल्स टू 24 dm cube at RTP. तो अगर 0.75 मोल्स है मेरे पास तो वॉल्यूम कितना होगा. 18. तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो 18 आ जाएगा आपके पास. ठीक है. एटीन DM क्यूब. आप चाहें तो टन्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस 40 टन्स फॉर इंस्टेंस 1 टन इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम. तो 40 टन्स इक्वल्स टू 40,000 किलोग्राम. 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम. तो अगर 40,000 आपके पास किलोग्राम है तो ग्राम कितने होंगे. तो जो ग्राम आएगा उसको आप 80 से डिवाइड करेंगे फिर आपके पास मोल्स आएंगे. फिर आप उनको लेके चलेंगे. आप ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं बट इस पे भी मार्क्स मिल जाएंगे आपको. ठीक है. आ रही है बात समझ में. स्टेट 1 यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट. भाई अमोनियम नाइट्रेट का तो यूज बहुत ही आसान है.
used as a fertilizer? Question number 3. Sucrose reacts with water to form glucose and fructose in reaction A. Suggest a name for this type of reaction. And obviously जब आप इस reaction की बात कर रहे हैं तो इसमें sucrose जो है वो hydrolyze हो रहा है. Water से reaction हो रहा है, इसका मतलब hydrolyze हो रहा है. तो hydrolysis. Explain in detail why glucose and fructose are a pair of structural isomers. Because दोनों का molecular formula same है, structure दोनों का different है. सही है, यहाँ कीटोन है और यहाँ एल्डिहाइड. सो आप सीरियसली बात कर दीजिए कि both of them have same molecular formula but different structural formula. But different structural formula because one contain aldehyde and other one contain ketonic group. ठीक है, देख लो अल्कोहल 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 यहाँ भी है, राइट, लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड है, यहाँ कीटोन है, बस ये फर्क है. Reaction A occurs faster in the process of an enzyme. This is reaction B. The activation energy for reaction B is plus 29 kilojoules per mole. Predict a value for the activation energy of reaction A. तो अगर रिएक्शन है फास्टर है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्वियसली greater than plus 29 kilojoules per mole. एंजाइम के साथ जब किया है तो उसने उसको रिएक्शन बी का नाम दे दिया, और जब एंजाइम के साथ रिएक्शन हो रहा है तो एनर्जी है प्लस 29 किलोजूल पर मोल. तो जो रिएक्शन ए है वो विदाउट एंजाइम एक्चुअली होगा, और जब विदाउट एंजाइम होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी इसकी. ठीक है, ये याद रखिएगा. The enthalpy change for reaction A is minus 14 kilojoules. Predict a value for the enthalpy change of reaction B. So enthalpy change पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Enthalpy change will remain same, that is minus 14 kilojoules per mole. जो एंजाइम होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को तो कम करता है लेकिन एंथैल्पी को कम नहीं करता. Sketch a labeled energy level diagram for reaction B. Use relevant values from C1 and C2.
बेटा आप यहाँ पर लिखेंगे सुक्रोज प्लस वाटर, और यहाँ लिखेंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, इसलिए एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। राइट, यहां से यहां तक आपके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि बेसिकली +29 किलो जूल्स पर मोल है। और यहां से लेकर यहां तक आपके पास क्या है, एंथैल्पी चेंज, जो कि बेसिकली आपके पास क्या है, -14 किलो जूल्स पर मोल। 1 gram of sucrose is completely combusted. The heat energy produced is used to increase the temperature of 250 gram of water inside a calorimeter. This temperature. This data can be used to calculate the enthalpy change of combustion of sucrose. Explain what is meant by the term enthalpy change of sucrose. तो आप लिखेंगे यहाँ पर enthalpy change occur when 1 mole of substance is completely burned in the presence of excess oxygen under standard condition. वो कह रहे हैं आपसे use the data booklet to calculate the enthalpy change in kilojoules per mole for the combustion of sucrose. Assume that all of the heat energy produced is transferred into the water. Show your working. वो हमसे कह रहे हैं एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, किलोजूल्स पर मोल। तो हम सबसे पहले डेल्टा Q इक्वल्स टू mc डेल्टा T लेंगे। m जो है वो मास ऑफ वाटर होगा विच इज 250। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेटा बुकलेट से लेंगे विच इज 4.18। टेम्परेचर चेंज एग्जामिनर ने दिया हुआ है 40.7 -25, तो 40.7 -25 करेंगे तो यहां से डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी 164, एक मिनट बेटा, 40.7 -25 into 4.18 into 250. So it's going to be 16406.5 joules. इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लें 1000 से डिवाइड करके, it's going to be 16.406 ठीक है किलो जूल्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हमें 1 ग्राम ऑफ सुक्रोज दिया हुआ है, इसका मतलब मैं इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो 1 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ बेटा mr से, moles of sucrose
1 को डिवाइड कर दीजिए सुक्रोज के एमआर से, एमआर ऑफ सुक्रोज मैंने खुद से निकालना है, ये हो जाएगा आपके पास 342। कैलकुलेटर पे तो करेंगे तो 342 हो जाएगा। तो 1 को जब डिवाइड करेंगे 342 से तो आपके पास आएगा 2.923 into 10 to the power minus 3 moles। अब क्या होगा 2.923 into 10 to the power minus 3 moles equals to 16.4065 kilojoules। तो अगर 1 मोल की कैलकुलेशन करनी है क्योंकि डेल्टा एच 1 मोल के लिए मांग रहा है वो, तो ये हो जाएगा 16.4065 divided by answer, so it's going to be 5611.023 kilojoules per mole। so ये हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन इज माइनस, कंबस्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, माइनस लगाना जरूरी है, 5611 ओके 0.023। Question number 4. An unlabeled bottle contains a straight chain halogenalkane Q. The molecular formula of Q is C5H11X, where X is a halogen, bromine, chlorine, or iodine. तीनों में से कोई भी हो सकता है। A test is carried out to identify the halogen present in Q. A sample of Q is added to NaOH and warm dilute nitric acid is then added, followed by a few drops of aqueous nitrate. A creamy precipitate is formed, such as the identity of X, bromide. तो ये बेसिकली ब्रोमाइड होगा या ब्रोमीन होगा। इसके रिस्पेक्ट से ब्रोमीन होगा और इसके रिस्पेक्ट से, इस टेस्ट के रिस्पेक्ट से ब्रोमाइड होगा। मैंने दोनों चीजें लिख ली, ठीक है। राइट एन आयनिक इक्वेशन टू डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ क्रीम प्रेसिपिटेट इंक्लूड स्टेट सिंबल्स। बेटा बहुत ही इजी है, सिल्वर आयंस ब्रोमाइड आयंस के साथ कंबाइंड होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं AgBr में, और AgBr के क्रीमी प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। सही है। स्टेट सिंबल्स मांग रहे हैं तो एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा और ये सॉलिड होगा क्योंकि इसके प्रेसिपिटेट्स होंगे। डिस्क्राइब अ फर्दर टेस्ट व्हिच वुड कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ एक्स। तो फर्दर टेस्ट करने के लिए मैं एक्वस अमोनिया ऐड करूंगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, विद डाइल्यूट अमोनिया precipitates partially soluble, the reaction of Q with NaOH tends to proceed via a SN2 mechanism, such as the structural formula of the straight chain halogenoalkane Q। तो बेटा स्ट्रेट चेन हेलोजेनोअल्केन Q है, तो ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। 5 कार्बन एटम्स का स्ट्रेट चेन एल्केन है, तो ये हो जाएगा बेटा CH3 CH2 CH2 4 5 Br। Explain why the reaction tends to proceed via an SN2 mechanism rather than an SN1। बिकॉज ये आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होता है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन देगा आपको, विच इज नॉट वेरी मच स्टेबल बिकॉज उसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे दिस इज बिकॉज प्राइमरी
Carbocations are formed. Which are not that much stable due to the weaker positive inductive effect of only one electron donating alkyl group. ठीक है, ये है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप। सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप है जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो इस तरह से हो रहा है। ठीक है, two different halogenalkanes P and R, both with molecular formula C4H9Cl, are separately dissolved in ethanol and heated under reflux with sodium hydroxide। इसका मतलब एलिमिनेशन हो रही है, क्योंकि एथेनॉलिक एनोएच जब भी होता है एलिमिनेशन होती है। Write an equation using molecular formula to represent the reaction occurring। बेटा आपके पास है C4H9Cl, आप उसको NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं इन इथेनॉल, तो एल्कीन बनेगा विच इज C4H8 प्लस NaCl बनेगा प्लस वाटर भी बन जाएगा। वाटर कैसे बनेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर। जब C4H9 में से H चला जाएगा तो C4H8 बचेगा। Now Na and Cl combine together to give NaCl। Draw the skeletal formula of methyl propene। तो methyl propene का skeletal formula ये होगा बेटा। This is your methyl propene का skeletal formula। Give the name of P and R। Okay, एक बेटा ये बन सकता है C4H9 Cl, और एक बेटा ये बन सकता है इन दोनों के पॉसिबल फॉर्मूले हैं C4H9Cl, C4H9Cl। तो अगर मैं इन दोनों की एलिमिनेशन करूंगा ना तो मुझे एल्कीन यही मिलेगी, इसके अलावा कोई और नहीं मिल सकती एल्कीन। सही है, कहाँ लिखा हुआ ये बात ये लिखी हुई है कि सिर्फ मेजर प्रोडक्ट मिथाइल प्रोपीन है, यानी इससे भी मिथाइल प्रोपीन, इससे भी मिथाइल प्रोपीन। तो अब इनके नाम बता देते हैं, इनके नाम बहुत आसान है, हमने आपको आयु पैक करवाया है, उसमें नाम बताया था हमने। इसका नाम हो जाएगा 1-chloro-2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये इस वाले का नाम हो गया। और दूसरे वाले का नाम है 2-chloro-2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया 1-chloro-2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम हो गया 2-chloro-2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है जनाब। Question number 5. The reaction sequence shows how ethene can be converted into other organic molecule। ठीक है, काफी बहुत बड़ा रिएक्शन सीक्वेंस है बट इंटरेस्टिंग है। बस मुझे ये पता चल रहा है कि एल्कीन से अल्कोहल बनाया, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाया, अल्काइल हैलाइड से एमाइंस बनाया, ये सब रिएक्शन हमने पढ़े हुए हैं। फिर अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। और फिर OH और CN जब एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं तो उसको साइनोहाइड्रिन कहा जाता है, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई यहाँ। और CN को आपने COOH में कन्वर्ट करना है, इसलिए उसने हीट किया है एसिड के साथ। सो इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक्चुअली स्कोरिंग क्वेश्चन है ये।
Complete the table to give the names of the reaction mechanism of reaction 1 and 6. Name of mechanism reaction 1 में electrophilic addition reaction, because all alkenes always undergoes electrophilic addition reaction. Name of reagents, तो बेटा आपने स्टीम यूज किया होगा, वो नेम पूछ रहे हैं तो स्टीम लिखूंगा मैं। कंडीशंस कह रहे हैं तो इसका मतलब 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 60 atmospheric pressure, and H3PO4 acts as a catalyst. स्टेप 2 में अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाए, इसका मतलब बेटा आपने ऑक्सीडेशन करवाई है, तो ऑक्सीडेशन के लिए यू नीड व्हाट, पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। आप रिफ्लेक्स नहीं कर सकते, इनफैक्ट आप वार्म करेंगे इन एसिडिक मीडियम। रिफ्लेक्स में तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ना। फिर 6 आप देखें क्लोरीन की जगह पर क्या आ गया, NH2। तो अगर क्लोरीन की जगह पे NH2 आ रहा है तो अल्काइल हैलाइड ऑलवेज अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपने एक्वस अमोनिया, आपने अमोनिया यूज किया होगा इन एथेनॉल सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप बताएंगे अमोनिया इन एथेनॉल heat in a sealed tube, in reaction 3 the organic molecule reacts with the hydrogen cyanide and potassium cyanide catalyst. Complete the diagram to show the mechanism of the reaction occurring. Include all relevant dipoles, lone pairs and curly arrows in your answer. आप जानते हैं इसके ऊपर होगा स्लाइड पॉजिटिव और इसके ऊपर होगा स्लाइड नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर शो करेंगे आप। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, एट द सेम टाइम ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। आप जानते हैं कि ये स्लाइड पॉजिटिव है और ये स्लाइड नेगेटिव है, ये लोन पेयर शो करेंगे, ये इससे रिएक्शन करेगा, एट द सेम टाइम ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नेम द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं बेटा, एक नाइट्राइल और एक सेकेंडरी अल्कोहल। आप अल्कोहल नहीं लिखेंगे, यू हैव टू बी स्पेसिफिक नाउ, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल W फॉर्म इन रिएक्शन 4। रिएक्शन 4 पे चलते हैं। ओके, यानी ये जो CN है सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस ये CN COH में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि वो स्केलेटल स्ट्रक्चर है तो इसलिए आंसर भी स्केलेटल में ही जाएगा। तो जैसे एग्जामिनर ने लिखा है हम भी वैसे ही लिख लेते हैं, OHCHCH3CN। ठीक है, सो बेटा हम इस तरह से लिखेंगे OH और ये क्या हो जाएगा आपके पास COH। CN COH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जामिनर ने बनाया था मैंने वैसे ही बना दिया, मैंने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। So we are done with this paper.